Yes. So we are talking about harmonic analysis, and I asked you to remember how to find out interval length for any interval. So it's upper limit up minus lower limit. So आपको total interval length मिल जाएगी. And secondly, we are going to divide the given interval into m equal parts, so that हर एक सब इंटरवल की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, which is 2 pi upon m. Right? Now, to deal with the harmonic analysis, we will not be given y as a function of x. What we did priorly, हमने इस particular function की Fourier series find out की थी, right? But now we will not be given function directly. Instead of that, we will be given the data points like xi, yi for I is equal to 1, 2, 3 and so on, right? So this particular difference is there. First, function will be given, we can directly find out the Fourier series by using the formalization. Second, we will be given data points, and data points cannot be dealt with the integration directly, so we are using here the summation part. As we know, one important prerequisite is this one. अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. सपोज दिस इज योर फंक्शन, राइट, एंड ये आपके एंड पॉइंट्स है, से a एंड यहाँ पे b. तो एरिया अंडर द कर्व हमारा आ जाता है इंटीग्रेशन a to b f of x dx, right? So instead of finding out this integration where function is given, I can find out the area without this function if I am having certain points x0, x1 and so on xm and corresponding function values y0, y1 and so on ym. So area under the curve can be determined instead of integration in terms of summation. So summation हर एक इंटरवल की सब लेंथ 2 pi upon m यहाँ पर आ जाएगा हमारे प्रॉब्लम के लिए. दिस इज b माइनस a अपॉन m, समेशन ऑफ ऑल फंक्शन वैल्यूज. तो ये हो जाएगा आपका एरिया विच इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx. सो ये जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. So with these three prerequisites, now let us introduce what is this harmonic analysis is. We are having variety of problems in practical engineering sector which are dealing with the harmonic analysis. So let us try to understand. In many engineering and scientific problems, the function is to be analyzed into harmonic. Means sin and cosine waves के forms में हमें ये identify करना पड़ता है या analyze करना पड़ता है. Often may not be given with the formula explicit function. Means what? Y is equal to f of x के फॉर्म में ये शायद नहीं दिया जाएगा. In that case, what we can do? But by set of discrete values of the function in the tabular form. Means x की values x0, x1 and so on xn के लिए y की values y0, y1 and so on yn आपको दी जाएगी. So what is the harmonic analysis exactly? This is the process of finding out Fourier series for available numerical data is called as the harmonic analysis. So हमारे दिए गए न्यूमेरिकल डेटा के लिए अगर हम Fourier series फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्मोनिक एनालिसिस. ठीक है. नाउ एज वी ऑल नो कि हमारा अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन सर्टन इंटरवल से 0 c to c plus 2l, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज ये जो इंटरवल है ना, ये आपको दी जाती है 0 to 2 pi. मीन्स c की वैल्यू यहाँ पर 0 है एंड c plus 2l की वैल्यू यहाँ पर 2 pi है. हमारे तो इस फंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज कैसे लिखते? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 by 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos of n by x by l. क्यों? क्योंकि l यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है 0 to 2 pi. इस हमारे गिवन इंटरवल के लिए अगर हम कंपेयर करते हैं 0 to 2l के साथ या c to c plus 2l के साथ, तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें? पाई, राइट. ये पाई वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं हम, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? cos of nx प्लस bn. यहाँ पर भी पाई रखो l की जगह, पाई पाई कैंसिल, ये मिल जाएगा sin of nx. ठीक है. तो हमारा फंक्शन जो मिल जाता है वो a0 by 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos of nx
प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स के फॉर्म में। अब इस पूरे एक्सपांशन को हम इस समेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। सो ए नॉट बाई टू एज इट इज ए वन कॉस ऑफ, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम इस इंटरवल के साथ डील कर रहे हैं। सो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी वन साइन ऑफ पाई बाय एक्स बाय एल, यहाँ पर भी एल एंड पाई कैंसिल करते हैं क्योंकि एल इक्वल टू पाई है, एंड सो ऑन। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट मी राइट डाउन नीटली फॉर आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस ए वन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी वन साइन ऑफ एक्स। प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट मैं ये इंटरवल 0 to 2 पाई के लिए एक्सपांड कर रही हूँ, राइट। यहाँ पर जो दिया है वो इन जनरल c to c प्लस 2l के लिए दिया है, प्लस a2 कॉस ऑफ x प्लस b2 साइन ऑफ x प्लस n3 के लिए n इक्वल टू 3 के लिए, एंड सो ऑन। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, राइट, प्लस इस टर्म को बोल रहे हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक a1 कॉस ऑफ हार्मोनिक, एक ही मिनट, देन प्लस सेकंड टर्म को यहां पर सेकंड हार्मोनिक, प्लस एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हम हार्मोनिक्स के बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड सो ऑन। सो प्रॉब्लम्स में भी आपको इसी वे में पूछा जाएगा, फाइंड आउट द फोरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर द फॉलोइंग डेटा अप टू first harmonic, up to second harmonic, and so on. So in that case what you have to find out is a0, a1, b1, a2, b2, and so on, correct। now Fourier coefficients हमें पता है कि किस वे में लिखे जाते हैं। now here it is explained in terms of a general part। मैं यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिसके साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं 0 to 2 पाई के लिए मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सो 0 to 2 पाई के लिए हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ए नॉट क्या हो जाएगा आपका 1 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जनरल इंटरवल के लिए ये इस वे में आ जाएगा, है ना, राइट। जैसे मैंने आपको एक प्री रिक्विजिट का फॉर्मूला ऊपर बताया था कि इंस्टेड ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम एरिया अंडर इंटीग्रेशन के साथ समेशन वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन m सब इंटरवल्स में हम इस 0 to 2 पाई को डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक सब इंटरवल की लेंथ हो जाएगी 2 पाई बाय m मल्टीप्लाइड बाय हर एक इंटरवल के लिए आपका फंक्शन, तो इसकी समेशन आ जाएगी, समेशन yi वेरीज फ्रॉम 0 to m-1। नाउ y(m-1) आपकी ये इंटरवल अगर देखी जाए दिस इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ऑलराइट। 0 पर आपका x नॉट आ जाता है, करस्पॉन्डिंग y नॉट आ जाएगा यहाँ पर। ये है आपकी फर्स्ट इंटरवल 0 to से 1, तो ये हो जाएगा x1 फॉर सपोज, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा y1 एंड सो ऑन, यहाँ तक ये हो जाएगा xm-1, इसके करस्पॉन्डिंग ym-1, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ से आपकी फंक्शन वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट्स वाई इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है ym, ये हमारे समेशन में नहीं आएगी, बिकॉज दैट विल एडिशनली सम अप द फर्दर इंटरवल पार्ट एंड इट्स फंक्शन वैल्यू, तो वो हमारे समेशन में नहीं आएगी, लेकिन वो हमारी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कैलकुलेट करने के काम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, व्हाट फॉर्मूला विल गेट, दिस इज 2 अपॉन m समेशन i इज इक्वल टू 0 to m-1। तो ये है आपका ए नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ समेशन पार्ट, ठीक है। सो इन जनरल ये फॉर्मूला प्रेफर कर सकते हो। एग्जैक्टली इन सिमिलर वे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए एन के लिए भी फॉर्मूला लिखा है, बी एन के लिए भी फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हम जिस पर्टिकुलर इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, हमारे इंटरवल 0 to 2 पाई के लिए, एम आई राइट। लेकिन इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1 अपॉन पाई
इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय m. m इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. समेशन I is varying from 0 to m minus 1 f of xi cos of nxi. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से पाई पाई हम कैंसिल कर सकते हैं. दिस रिजल्ट इज 2 अपॉन m समेशन I is equal to 0 to m minus 1 f of xi या इसे yi भी बोल सकते हैं हम, इंटू cos of nxi. ठीक है, ये है आपका an का फॉर्मूला. एग्जैक्टली इन सिमिलर वे में bn का फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हो, 2 अपॉन m समेशन n इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 to m minus 1 f of xi साइन ऑफ nxi. ठीक है, सो केयरफुली लुक इनटू दिस. ये हमारे फॉर्मूलाज हैं. दिस इज थर्ड फॉर्मूला, ये है आपका सेकंड फॉर्मूला, एंड ऊपर हमने जो डिफाइन किया था a नॉट का, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, नाउ यू विल डेफिनेटली आस्क मी क्वेश्चन कि मैम आपने ये 0 to 2 पाई के लिए एक्सप्लेन किया है, हाउ इट गोज फॉर द जनरल इंटरवल. तो जनरल इंटरवल का फॉर्मूला यहाँ पे देके ही रखा है. यू कैन ऑब्जर्व दिस डिफरेंस. a नॉट का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था. You can compare both of these formulas. Exactly same है. 2 upon m summation by I is equal to 0 to m minus 1. So whether your interval is 0 to 2 pi, whether your interval is 0 to 2l, and whether your interval is c to c plus 2l, any interval. In that case, a naught का formula आपका तो change नहीं हो रहा है. So it's quite easy to remember the formula. But anyhow, for the given interval, what you have to locate, identify first is the value of L. ये हमेशा फाइंड आउट करके रखो बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है द वैल्यू ऑफ m, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं. सो दैट 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिफोर यू गो टू प्रिपेयर अ टेबल. इस पर्टिकुलर टाइप में हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. सो मैंने a नॉट का फॉर्मूला बताया. अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं an का फॉर्मूला किसी भी इंटरवल के लिए एंड इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए. सो ये है आपका फॉर्मूला an का. आप यहाँ पर देख सकते हो ll अगर कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है 2 अपॉन m समेशन yi cos ऑफ n पाई xi अपॉन l. सो आप ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर. ये देखो एंगल में, कोसाइन एंड साइन के एंगल में डिफरेंस आ जाता है. क्यों? अगर मेरी इंटरवल 0 to 2 पाई है तो l की वैल्यू क्या आ रही है, पाई, और यह वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा nxi. और अगर ये l वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है जैसे 2, तो यहाँ पर मुझे n पाई xi बाई 2 लिखना पड़ेगा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस. एम आई राइट? सो ये डिफरेंस बस आपको याद रखना है कि अगर जनरल इंटरवल हो गई तो एंगल पर कहाँ पर चेंज हो रहा है, एंड अगर स्टैंडर्ड इंटरवल है 0 to 2 पाई तो कहाँ पर चेंज हो रहा है. सेम डिफरेंस आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो. ये जनरल इंटरवल के लिए bn है और ये हमारे पर्टिकुलर इंटरवल 0 to 2 पाई के लिए bn है. एग्जैक्टली सेम है. ll कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन m, यहाँ पर भी 2 अपॉन m है. समेशन एज इट इज़ है, यहाँ पर भी सेम है. fxi मीन्स आपका yi या फिर आप इसे fxi लिख सकते हो. दिस इज नथिंग बट फंक्शन वैल्यू एट xi. ये भी फंक्शन वैल्यू है एट xi. ठीक है, तो चेंज कहाँ पर है, यहाँ पर. बस उतना डिफरेंस आपको याद रखना है. समझ गया? तो अगर ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद है, एल आप अगर निकाल सकते हो, एम अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देन इट्स प्रीटी मच इजी टू प्रिपेयर अ टेबल एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड जैसे मैंने कल क्लास में बताया था, ये वाले प्रॉब्लम ना 6 to 7 मार्क्स के लिए पूछे जाने चाहिए. सो ये है आपके फाइनल फॉर्मूलेज. For any interval you can apply these formulas. What you have to do is identify L and identify M and ये तीनों formulas. Additionally और एक formula हमें लगेगा जो कि है amplitude का. So I'll write down here. Probably it will be given on the next page as well. Yes, first harmonic, second harmonic and so on. जैसे हमने ऊपर भी लिखा था. And this formula I was trying to tell you. Amplitude of nth harmonic, a square root of an square plus bn square
अगर मुझे फर्स्ट हार्मोनिक की एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो आई जस्ट राइट डाउन AMP स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, सेकंड हार्मोनिक की स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये nth हार्मोनिक क्या होता है, लेट मी राइट इट डाउन, AN cos ऑफ n पाई x बाय l प्लस BN साइन ऑफ n पाई x बाय l। सो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप द थ्योरी इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन विल गेट बैक टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमने क्लास में बाकी सारे बैचेस में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, इट वाज क्वाइट इजी इंस्टेड ऑफ दिस। सो इस प्रॉब्लम पर बाद में आते हैं, पहले हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लेट मी गेट टू द ब्लैंक पेजेस ओवर हियर। यस, सो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर following data up to first harmonic and also find amplitude of first harmonic। ठीक है, so data is given in this way, this is x naught, sorry x की values x i's and corresponding function values y i's 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, and y की values यहाँ पर मैं लिखती हूँ, this is 9 18 24, this is 28 26 and this is 20। ठीक है, सो ये डेटा सेट्स आपके पास है। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, मुझे यहाँ पर L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई स्टार्ट विथ इंटरवल है मेरी 0 टू समथिंग। मुझे ऑब्जर्व क्या करना है, इंटरवल आइडेंटिफाई करते वक्त। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, लेट मी राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। नंबर 1 इंटरवल, ये इंटरवल मुझे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, इंटरवल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमारा फोरियर सीरीज एक्सपांशन सिर्फ एंड सिर्फ पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ट्रू होता है या लिख सकते हैं। सो पीरियोडिक फंक्शन है मीन्स आपका जो पीरियड है वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स आपके पीरियड के अलावा अगर हम नेक्स्ट पीरियड पर जाते हैं तो वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट होनी चाहिए। एम आई राइट? सो हम क्या देखेंगे, हमारे जो फर्स्ट पॉइंट की जो वैल्यू है y की, x इज इक्वल टू 0 के लिए y जो 9 हमें मिल रहा है वो रिपीट होना चाहिए। हमारे लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो वो वैल्यू दी ही नहीं है। 0 से लेके 1 1 से लेके 2 2 से लेके 3, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सब इंटरवल्स की लेंथ जो है ना वो सेम है। तो ऑब्वियसली जब हम 5 पर आते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि हमारी ये जो वैल्यू है ना, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वैल्यू ऑफ x जो कि 6 होनी चाहिए, इसके लिए हमारी y की वैल्यू रिपीट होनी ही चाहिए, तो ही ये डेटा पीरियोडिक डेटा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने वैल्यू तो लिख ली, लेकिन ये वैल्यूज हमारे समेशंस के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ये कहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी, बस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। सो हमारी फर्स्ट इंटरवल है ये, दिस इज सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एंड हमारा जो इंटरवल है वो किस वे में फॉर्म हो रहा है, 0 से लेके 6 तक। अब इस इंटरवल को मैं किसके साथ मैच कर सकती हूँ, 0 to 2L के साथ मैच कर सकती हूँ। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज, L इज इक्वल टू 3। एम आई करेक्ट? आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर आपको कुछ डाउट्स है ना, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आई कैन रिपीट द टास्क। देन सेकंड चीज मुझे आइडेंटिफाई करनी है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ये हमने अभी काउंट की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितनी है 6. सो हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट की है. एंड नाउ व्हाट आई हैव टू राइट डाउन इज द सेट ऑफ फॉर्मूलाज. सो ये है मेरी सेट ऑफ फॉर्मूलाज. बिफोर दैट मैं हमारा y जो है ना, इसके लिए एक एक्सपांशन लिख लेती हूँ. y क्या है? आपका कोई भी फंक्शन होगा f ऑफ x का जिसके डेटा पॉइंट्स आपको दिए हैं, नॉट फंक्शन एज गिवन. सो y इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos ऑफ n बाय x बाय l की वैल्यू क्या है 3 प्लस bn साइन ऑफ n बाय x बाय l. सो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट. लेकिन ये तो हमें फाइंड आउट नहीं करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? बस फर्स्ट हार्मोनिक तक. तो मैं फर्स्ट हार्मोनिक लिख लेती हूँ. a0/2 प्लस a1 cos ऑफ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, सो इट्स πx/3 प्लस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू होनी चाहिए 1 एंड n की वैल्यू 1 होने से ये होना चाहिए b1 साइन ऑफ πx/3. नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली. मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट हार्मोनिक तक? a0, a1 एंड b1. लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? ये एंगल फाइंड आउट करना है. क्योंकि ये एंगल तो दिया नहीं है. दिया क्या है? x की वैल्यूज दी है, राइट, जो कि रेडियंस या डिग्रीज में है नहीं. तो हम फर्दर साइन ऑफ द एंगल एंड कॉस ऑफ द एंगल तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, राइट. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दैट एंगल इज πx/3. ठीक है. सो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो x इक्वल टू 0 के लिए ये आ जाएगा 0, x इक्वल टू 1 के लिए दिस इज π/3, 2 के लिए 2π/3, 3 के लिए पाई, 4 के लिए 4π/3, 5 के लिए 5π/3, राइट. एंड इसके लिए हम कुछ भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं करेंगे. सो ये हो गया हमारा एंगल, जिसके लिए कोसाइन एंड साइन की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है फर्दर. ठीक है. सो मैं यहाँ बस थोड़ा सा सेपरेशन बना लेती हूँ स्ट्रेट लाइंस के साथ. हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है पता नहीं, राइट, क्योंकि हमने फॉर्मूलेज ही नहीं लिखे. हमने बस हमारा फर्स्ट हार्मोनिक तक का फोरियर सीरीज एक्सपांशन लिखा है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये फोरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. फोरियर सीरीज अप टू क्या? फर्स्ट हार्मोनिक. लेकिन इसके फॉर्मूलेज क्या है? फॉर्मूलेज पहले लिख लेते हैं. a0 का फॉर्मूला क्या है समेशन के फॉर्म में? 2 अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स m इंटू समेशन I इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू m-1 इंटू yi. ठीक है. a1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहां पर n की वैल्यू 1 रखनी है. सो दिस इज 2 अपॉन m, ये तो एज इट इज रहेगा. I इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू m-1 yi इंटू cos ऑफ πxi/3. हमने ये एंगल तो फाइंड आउट किया है, तो cos ऑफ दैट एंगल फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. एंड उससे मल्टीप्लाई करना है फाइंड आउट करने के बाद yi से. ठीक है. सो लेट अस ट्राई आउट दिस. टेबुलर फॉर्म में ही ये सब कैलकुलेट करना है. सो थिंग्स आर वेरी इजी. बस हमें पहले प्रॉपरली फॉर्मूलेज लिखने हैं. सिमिलरली b1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं. दिस इज I इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू m-1 yi साइन ऑफ πxi/3. ठीक है. सो ये फॉर्मूलेज हमें अप्लाई करके a0, a1 एंड b1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. लेट अस गेट बैक टू द टेबल. मुझे सबसे पहले तो cos ऑफ दैट एंगल एंड साइन ऑफ दैट एंगल फाइंड आउट करना है. सो पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. क्या क्या फाइंड आउट करना है? cos ऑफ πxi/3, देन साइन ऑफ πxi/3. उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? yi मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ दैट एंगल. एंड उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? yi इंटू साइन ऑफ दिस एंगल. कौन सा एंगल? यही वाला. ठीक है. मैं यहाँ पर बस स्केल के साथ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ऑफ द वैल्यूज एज वेल. ठीक है.
तो हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं एंड लास्टली वी विल बी कैलकुलेटिंग इट इन दिस वे. ठीक है, ओके. सो अब कोसाइन एंड साइन की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. इन वैल्यूज के लिए कॉस ऑफ दिस एंगल, ये एंगल्स की कितने वेरिएशन है यहाँ पर, तो हर एक के लिए फाइंड आउट करते हैं. कॉस ऑफ 0 1, कॉस ऑफ पाई बाई 3 1/2, सो ये आ जाएगा 0.5. कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 ये भी आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा सॉरी -1/2, सो -0.5. कॉस ऑफ पाई -1. कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3 ये आ जाएगा what this will be minus ना only, yes माइनस आ जाएगा, -0.5. ये आ जाएगा फिर से 0.5 1/2, यस. ठीक है, लेकिन मुझे इस कॉलम की समेशन नहीं चाहिए. ये सम हमें नहीं चाहिए. हमें किस कॉलम की समेशन चाहिए? इस कॉलम की समेशन चाहिए. नाउ लेट अस फाइंड आउट कॉस वैल्यू, इस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन विथ दिस पर्टिकुलर कॉलम स्टेप बाय स्टेप. सो 9 इंटू 1 9, 18 इंटू 0.5 ये भी 9, 24 इंटू -0.5 ये हो जाएगा -12, -1 इंटू 28 -28, 0.5 विथ -9 मल्टीप्लाइड बाई 26, सो ये हो जाएगा -13 एंड 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20, सो इट्स 10. तो मुझे इसका समेशन चाहिए, समेशन ऑफ वाई आई इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स आई बाई 3. ये जो मेरी पूरी कॉलम है ना, इसका सम मुझे चाहिए. सो दिस इक्वल टू विल फाइंड आउट. ठीक है, दूसरी सम क्या चाहिए? A0 फाइंड आउट करने के लिए इस कॉलम की सम चाहिए, इस कॉलम की ये वाली सम चाहिए. ठीक है, सो ये सम लिख देते हैं यहाँ पर. दिस इज समेशन वाई आई, और ये वाई आई की सम कहाँ तक ले रहे हैं हम? 1 इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to 5, 6 इज इक्वल टू 9. ये वाली वैल्यू जो इंटरवल कैलकुलेट करते वक्त हमने लिखी थी वो हम समेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, 2 समेशन मिल गए. अब तीसरा समेशन मुझे कहाँ से फाइंड आउट करना है? इस वैल्यूज के साथ फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिफरेंट कलर के साथ. साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ पाई बाई 3 ये आ जाता है √3/2, सो ये वैल्यू आ जाएगी आई गेस 0.866. ठीक है, देन यहाँ पर ये भी 0.866 आ जाएगी. देन फर्दर वैल्यू कॉस साइन ऑफ पाई 0, यहाँ पर -0.866, यहाँ पर -0.866. तो ये तो साइन की वैल्यूज आ गई. वी डोंट वांट सम ऑफ दिस कॉलम. अगर इस कॉलम की सम ले रहे हो तो ये मुझे नहीं चाहिए. क्या चाहिए? वाई आई इंटू साइन ऑफ एक्स आई, मीन्स इस कॉलम का मल्टीप्लीकेशन टर्म बाय टर्म विथ दिस कॉलम वंस अगेन. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस एंड लेट अस राइट डाउन. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 0. दिस विल बी let me get my calculator just a minute so that it will get fast. All of you simultaneously can calculate and tell me the values as well. So ये values है आपकी 9 इंटू √3. ठीक है, देन आगे की वैल्यू है दिस इज 12 इंटू √3. ये डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे हम. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज √9 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, सो √12 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज 12, 10 पॉइंट ये आ जाती है 10 पॉइंट, ये 9 आ जाएगी. दिस इज 10.392. ओके, ये इसकी वैल्यू है. ठीक है, माइनस सॉरी इसकी. सो 28 के लिए ये वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर. दिस इज 0, ये तो 0 आ जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज वंस अगेन माइनस, एक मिनट, √13 आ जाता है ये मल्टीप्लाइड बाय सो ये -22.516 आ जाती है वैल्यू. एंड द लास्ट वैल्यू इज
-10 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये आ जाती है -17.302। ठीक है, इस पूरे कॉलम की हमें सम करनी है। नाउ लेट अस सम दैट वन बाय वन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, समेशन वाई आई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स आई बाय 3, एंड ये समेशन मुझे चाहिए हमारे फॉर्मूलाज में पुटअप करने के लिए। तो ये समेशन फाइंड आउट कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, इसका सम दिस इज 17, 21, 29 and 6, 35 and 3, this is 8 and 3 11 and 125। तो इस कॉलम की सम हमें मिली है 125। देन इस कॉलम की सम निकालते हैं, 9 and 9 18, 18 plus 10 28, 28 minus 28 will 0 and this is -25। ओके, इसकी मुझे सम निकालनी पड़ेगी, जस्ट वेट। इट्स 9 प्लस 10.392 प्लस ओके माइनस 22.516 माइनस 17.302। oh wait a minute, सम वैल्यूज आई कैलकुलेटेड इट। एक बार ये वैल्यूज क्रॉस चेक करना, ये समेशन जो हमें मिल रही है ना, दैट हैज़ टू बी -3.464, ये सम हमें मिलनी चाहिए। सो ऑल ऑफ यू प्लीज क्रॉस चेक दैट कॉलम। दिस इज वाई आई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। हाँ, तो आई जस्ट प्रोसीड विद दीज वैल्यूज, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ठीक है, नाउ विल पुट अप ऑल दिस वैल्यूज ओवर हियर। कहाँ पर, यहाँ पर फॉर्मूलाज में। सो आपके m की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स 6, समेशन i इज इक्वल टू 0 to 5 समेशन ऑफ वाई आई। लेकिन ये पर्टिकुलर समेशन हम टेबल से कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इट्स 1/3 इंटू 125। तो हमारी a नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस नहीं 40, दिस 3 4s आर 12, 1 रिमाइंडर 2 मिल जाता है हमें, दिस इज 0.6 एंड फिर से 6, 41.66। दिस इज इक्वल टू 2/6 वंस अगेन। समेशन, ये वाला समेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। व्हाट इज इट, i इज इक्वल टू 0 से लेके 5 तक, वाई आई कॉस ऑफ पाई एक्स आई बाई 3। तो ये सम हमें मिला है, कैलकुलेट हो गए। दिस इज 1/6, आई राइट डाउन, दिस इज 1/3, 2/6 is 1/3 and this summation we received as -25। so ये डिवाइड होके हमें मिलता है -8.33 एंड ये हमें मिलता है, दिस इज 2/6 समेशन i is equal to 0 to 5 yi sin of pi xi by 3 and this is equal to 1/3 into ये सम हमें मिली है -3.464, right, and this has to be it's -1 1 5 5 once again, so -1.55 155. So these three values we received. I'll just mark that once again. A naught की value, this is A1 की value and this is BN की value. And now your Fourier series can be represented by 41.66 divided by 2 plus A1 की value
minus 8.33 multiplied by cos of pi x by L plus b1 की वैल्यू minus 1.155 multiplied by sin of pi x by L. So ये है आपका Fourier series expansion with the help of harmonic analysis. Now second question we have to answer is amplitude. Amplitude is equal to square root of a1 square plus b1 square. So this is equal to minus 8.33 bracket square plus minus 1.155 bracket square. So this value has to be approximately 8.4126. Now why I am saying approximately, you can use this word everywhere to get the values of a0, an, b1, a2, b2 and so on. क्योंकि टेबल बनाते वक्त आप यहाँ पर जितने डेसिमल प्लेसेस ले रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच एक्यूरेट आंसर यू आर गोइंग टू गेट. हमने यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है, तो हमें आंसर इवैल्यूएटेड आंसर मिला है. अगर हम 5 डेसिमल प्लेसेस तक लेते तो शायद आंसर थोड़ा सा वैरी होता. So this much variation in harmonic analysis we do accept. So please try to get as per as accurate answer you are getting, and every time please write down this as a equivalent to or approximately equivalent to the received value whatever you are getting. I hope the problem is clear to everyone. Now here we are having 2 types majorly. One, your interval will be 0 to 2 pi. In that case आपको जो एंगल्स मिलने वाले हैं ना साइन एंड कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए, वो मिलने वाले हैं डिग्रीज में. एंड सेकंड टाइप है कि इंटरवल आपकी हो सकती है 0 to 2l, जैसे अभी वाले प्रॉब्लम में थी. तो यहाँ पर जो आपके एंगल्स मिलने वाले हैं ना, जिसके लिए आप साइन एंड कोसाइन फाइंड आउट कर रहे हो, वो होंगे रेडियंस में. सो आपको करना क्या है, आपके कैल्सी में ना एक मोड होता है जो रेडियंस पर सेट होता है या फिर डिग्रीज पर सेट होता है. सो वट एवर वैल्यूज यू आर गेटिंग ना, अकॉर्डिंग टू दैट सेट अप योर मोड एंड देन कैलकुलेट द वैल्यूज. अगर आपने प्रॉपर मोड सेट नहीं किया तो आपकी ये जो टेबुलर वैल्यूज है ना, वो सारी की सारी गलत हो सकती है एंड विल लीड टू द रॉन्ग आंसर्स. सो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट. आपके पास कोई भी कैल्सी है, वेदर इट इज़ 991 MS, ES, ES प्लस, वहाँ पर अच्छे से स्टडी करो. गूगल इट आउट, यूट्यूब पर इसके सिंपल से वीडियोस मिल जाएंगे, रेडियंस टू डिग्रीज कैसे सेट करना एंड ऑल. या फिर रेस्ट ऑफ बैचेस को भी हम बता चुके हैं. ऑनलाइन मोड में ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एक्सप्लोर दैट एंड प्लीज़ प्रिपेयर द टेबल करेक्टली. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट्स इनमें इंक्लूडेड है. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट, एक्चुअली आई शुड राइट डाउन हियर, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. इंटरवल आइडेंटिफाई करो. सेकंड, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आइडेंटिफाई करो. थर्ड, आपको क्या चाहिए, क्या फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली फोरियर सीरीज एक्सपेंशन किस वे में चाहिए, कौन से हार्मोनिक तक चाहिए, ये लिखो. देन कम टू द टेबल, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. सो दैट इज योर फोर्थ स्टेप. उसके बाद ये फॉर्मूलेज इवैल्यूएट करना है, फिफ्थ स्टेप. एंड सिक्स्थ स्टेप, आपको आपका फोरियर सीरीज लिखना है या फिर एम्पलीट्यूड पूछी है तो वो आइडेंटिफाई करना है. सो टोटल 6 to 7 steps are included in the problem. I hope you are clear with this particular part. Any doubts, anyone? You can ask your doubts if you are having. ठीक है. मैम. Yes. मैम वो इंटरवल का कैन यू रिपीट? Interval का? How to find out the interval? Can you just repeat it once? हाँ, ओके. हम अलग एक प्रॉब्लम के लिए लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. चलो ये प्रॉब्लम लेते हैं जो ऑलरेडी इस पीपीटी में इंक्लूडेड है एंड आई गेस आई अपलोडेड दिस पीपीटी. सो यहाँ पर आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है. सो मैं यहाँ पर टी की वैल्यू लिखती हूँ एंड दिस इज कैपिटल टी वैल्यूज. सो दिस इज 0, T/6, T/3, दिस इज 2T/3, यहाँ पर 5T/6 एंड दिस इज T. अब यहाँ पर देखो टी की, कैपिटल टी की जो वैल्यूज है ना वो 1.98, यहाँ पर 1.30, दिस इज 1.05, यहाँ पर 1.30 है, यहाँ पर -0.88 है. मैंने कुछ मिस किया है क्या? T/2. ओके, एक ही मिनट, गिव मी मिनट.
this is t by 3, this is t by 2, 2t by 3, this is 5t by 6 and यहाँ पर t, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यूज है, सॉरी आपकी नॉट t, 1.98, 1.30, 1.05, 1.30, माइनस 0.88, दिस इज माइनस 0.25 एंड t के लिए 1.98। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 0 के लिए वैल्यू 1.8 है, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू t के लिए वैल्यू 1.98 है, मीन्स यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होना चाहिए। नाउ वन एम्बिग्यूटी इज हियर, इमीडिएटली 0 के बाद t बाई 6 की वैल्यू 1.30 है एंड t बाई 2 की वैल्यू भी 1.30 है, ये दो वैल्यूज भी सेम है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये t बाई 6 से लेके t बाई 2 तक ही इंटरवल है? नो क्यों? क्योंकि ये पूरा डेटा सेट जो दिया है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए दिया है। इन बिटवीन अगर वैल्यूज रिपीट होती है, लेकिन इस 1.30 के साथ यहाँ पर आपको फिर से 1.98 नहीं मिला है, 1.98 के बाद 1.30 नहीं मिला है, 1.30 के बाद 1.98 फिर से नहीं मिला है, मीन्स ये जो वैल्यूज है वो रिपीट नहीं हो रही है, राइट। 1.30 के साथ 1.05 मिला है जो इसके बिल्कुल डिफरेंट है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगेन 1.30 मिला है, अब 1.30 इसके बाद अगर रिपीट होना चाहिए तो 1.98 आना चाहिए था, वो नहीं आया है। दैट मीन्स ये दो जो वैल्यूज जो रिपीट हो रही है वो हमारा पीरियड जस्टिफाई नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज रिपीट हुई है वो हमारा पीरियड जस्टिफाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका डेटा क्लोज करके दिया है। वी हैव नॉट गिवन एनी फर्दर डेटा आफ्टर दिस t, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि t इक्वल टू 0 के लिए ये जो वैल्यू रिपीट हो रही थी वो कैपिटल T के लिए फिर से रिपीट हो रही है, मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट होना चाहिए, am I right? सो हमारे इवैल्यूएशन में, इंटरवल के इवैल्यूएशन में t इंक्लूड होगा, बट कैलकुलेशन में, समेशन में ये t इंक्लूड नहीं होगा, am I right? तो अब यहाँ पर इंटरवल लिखते हैं हमारे कि इंटरवल क्या होनी चाहिए, 0 से तो स्टार्ट हो रही है एंड t पर ये क्लोज हो रही है, क्योंकि इस वैल्यू पर t पर हमारी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। अब इस प्रॉब्लम में ये दिया है, जहाँ पर नहीं दिया है वहाँ पर क्या करना है, एज्यूम करना है, ठीक है। सो हम आपकी इंटरवल क्या है, 0 to t। अब इसे किसके साथ कंपेयर कर सकते हो आप, 0 to 2l के साथ। तो l क्या आना चाहिए आपका, कैपिटल T बाय 2, तो ये है आपकी l की वैल्यू, समझ गए? यस यस मैम। यस, एंड इंटरवल्स कितनी है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे तो ये कैपिटल T इज इक्वल टू 1.98 है ना, ये इवैल्यूएशन में कहीं पर नहीं है समेशन निकालते वक्त। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दीज आर सिंप्लीफाइड हियर, ये जो है आपकी T की वैल्यू, L की वैल्यू शो कर रहा है एंड दिस इज सेटिंग योर एंगल। यहाँ पर आपका एंगल आ जाएगा जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो प्रॉब्लम में क्या बोला है, लेट अस रीड द प्रॉब्लम वंस अगेन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक करंट ओवर अ पीरियड। सो पीरियोडिक करंट दिया है, हर बार आपकी जो वैल्यूज है ना वो xi, yi में नहीं होगी। इस प्रॉब्लम के लिए वैल्यूज ना t, कैपिटल A के फॉर्म में, सो आप इसे ti, कैपिटल AI के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। सो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, yi। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या है, AI। तो आप जो फोरियर सीरीज लिखोगे वो किसके लिए लिखोगे, AI के लिए लिखोगे, ठीक है। शो बाय द प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस दैट देयर इज अ डायरेक्ट करंट 0.75। सो 0.75 का डायरेक्ट करंट है, मीन्स व्हाट, दे आर आस्किंग फॉर द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, a0/2। सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि a0/2 की वैल्यू आपकी 0.75 आ रही है, जो कि डायरेक्ट करंट है, कांस्टेंट वैल्यू है करंट की, ठीक है। एंड इन द वेरिएबल करंट मीन्स हार्मोनिक्स जो है ना वो क्या आएंगे, सो वेरिएबल करंट में हार्मोनिक्स जो है ना वो कब तक फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट हार्मोनिक तक, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी वहीं तक फाइंड आउट करनी है। सो हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक एंड उसी हार्मोनिक के एम्पलीट्यूड, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a0 का दिस वन, an का दिस वन एंड bn का दिस वन।
नाउ यहाँ पर हम समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to m-1 ए आई ले रहे हैं क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर भी ए आई होना चाहिए, ये गलती से वाई आई ही रहा है, ठीक है, यहाँ पर ए आई होना चाहिए, तो ए आई और इसका प्रोडक्ट ले लें आप। सो सबसे पहले क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तभी जाके तो कोसाइन ऑफ दैट एंगल एंड साइन ऑफ दैट एंगल कैलकुलेट हो पाएगा। सही है, तो लेट अस ऑब्जर्व द टेबल। कैपिटल टी, ये सारी वैल्यूज, ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है सेपरेटली, ये आया है रेडियंस में, ठीक है, ये है आपका ए। एंड यहाँ पर देखो हमने जो प्रीवियसली कहाँ पे गया मेरा टेबल, हाँ, यहाँ पर हमने ना ये साइन ऑफ दैट एंगल एंड कॉस ऑफ दैट एंगल अलग से फाइंड आउट किया था। सो ये दोनों भी कॉलम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया है, शॉर्टन किया है थोड़ा सा। सी दिस, ए एंड ये कॉस वाली टर्म का प्रोडक्ट लिया है डायरेक्टली, फेयर इनफ, आप कॉलम का इवैल्यूएशन थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, तो ये कैलकुलेशन 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिया है, सो दैट मोस्ट एक्यूरेट आंसर वी विल बी गेटिंग। सो आपको जो कैलसियस कैरी करना है ना, वो मेजरली 2 रीजंस के लिए करना है। नंबर 1 ये टेबल बनाने के लिए, नंबर 2 आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। सो इन दोनों जगह पर आपका कैलसी आपकी बहुत मदद करेगा, सो प्लीज़ कैरी इट। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ बोरो इट, ठीक है, सीनियर से बोरो कर लो तब तक, जो भी पार्ट है आपका, ठीक है। सो ये है आपका a इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल जो कैलकुलेट कर रहा है, जिसकी सम यहाँ पर फाइनली निकाली है, विच इज़ दिस वन। a की भी सम निकाली है, वो a0 फाइंड आउट करने के लिए लगने वाली है, दिस इज़ फॉर a1, ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर b1। और ये वैल्यूज जैसे ही कैलकुलेट हो जाती है, आपको फॉर्मूलाज में पुटअप करके क्या फाइंड आउट करना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एंड कहाँ पे पुटअप करनी है, आपके फोरियर सीरीज एक्सपांशन में पुटअप करनी है, यहाँ पर। सो ये है आपका फोरियर सीरीज एक्सपांशन, कांस्टेंट टर्म जो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में आ रही है, एंड दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक, जिसकी एम्पलीट्यूड भी आपको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर बस a0, an एंड bn की वैल्यूज रखी है। सो a0 जो ऊपर की टेबल से कैलकुलेट करके आया है 1.5, a1 जो ऊपर की टेबल से कैलकुलेट करके आया है 0.373, एंड b1 जो ऊपर के टेबल से एंड फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आया है वो है 1.004। कॉस ऑफ दिस एंगल बी केप्ट एज इट इज, ठीक है। ये एंगल कैलकुलेट कैसे हुआ है, आपका जनरल एंगल क्या है, पाई एक्स आई बाय एल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन पाई एक्स की जगह क्या है, स्मॉल टी, कैपिटल एल की जगह क्या आ रहा है, कैपिटल टी बाय 2, am I right? सो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज एन एज इट इज पाई इंटू स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ये आपका जनरल एंगल है, लेकिन A1 के लिए आप क्या कर रहे हो, n की वैल्यू 1 पुटअप कर रहे हो, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई इंटू टी इंटू 2, सो दिस इज 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। यही एंगल यहाँ पे लिखा है ना, राइट। सो केयरफुली ड्राफ्ट दैट एंगल एंड देन राइट ऑन द स्टफ। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंड लेंदी है ज़रूर, लेकिन बहुत सिंपल है, एंड इसका एक भी मार्क आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। फिक्स प्रोसेस है, फिक्स 7 स्टेप्स है, 2 ही कैटेगरीज है, आइदर आर्बिट्री इंटरवल या फिर स्टैंडर्ड इंटरवल, ठीक है। सेम वे में एम्पलीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट किया है जैसे हमने पहले प्रॉब्लम के लिए किया था, एंड आंसर इज कमिंग आउट टू 1.07। एंड ये भी याद रखो कि हम मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर को मैच करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा। सो प्रिफरेबली ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स एट योर ओन टू गेट कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर से इंटरवल आपकी 0 to 2L कैटेगरी वाली है, तो आप एग्जैक्टली सिमिलर वे में अच्छा ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर मैंने लिख के दिया था ना 8.414 समथिंग लिख के दिया था, यहाँ पर आया है 8.50 विद द डिटरमिन्ड प्लेसेस, डिसिमल के बाद कितनी प्लेसेस पर हम करेक्ट लेते हैं वहाँ तक। हाँ ओके, ये वाला प्रॉब्लम ना वैसे आप सॉल्व कर सकते हो इन जनरल अप टू, नहीं ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व ही मत करो, दिस इज ना हाफ रेंज के लिए है ये। हाफ रेंज मीन्स 0 to 2L,
ये आपकी फुल रेंज है। हाफ रेंज मीन्स 0 to L, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्रीज तक ही दिया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, ठीक है। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। सो यस, आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से डेटा जो दिया है ना वो xi, yi के फॉर्म में दिया है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट प्रॉपरली। सो ये है आपकी x वैल्यूज़, ये है आपकी y वैल्यूज़। आपको करना क्या है, यूज टैबुलेटेड वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन टेबल, डिटरमिन द फर्स्ट हार्मोनिक तक ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। सो आपकी इंटरवल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है इंटरवल, 0 से स्टार्ट हो रही है 330 तक, लेकिन 330 के लिए वैल्यूज तो रिपीट नहीं हुई, तो हमें और एक वैल्यू कंसिडर करनी चाहिए विच इज़ 360, जिसके लिए वैल्यू रिपीट होनी चाहिए 70, ठीक है। सो आपकी जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 2 पाई तक है, 360 डिग्रीज। तो इसे अगर कंपेयर करें 0 to 2L के साथ, तो L की वैल्यू क्या मिलती है आपको, पाई अगर आपने यहाँ पर रखा तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a0/2 प्लस समेशन an cos of nx प्लस bn sin of nx के फॉर्म में। क्या फाइंड आउट करना है, अप टू फर्स्ट हार्मोनिक मीन्स a1 एंड b1 फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर n की वैल्यू 1, दिस इज cos of x, b की n की वैल्यू यहाँ पर भी n, तो ये हो जाएगा sin of x, ठीक है। सो प्रिपेयर अ टेबल विथ ऑल दैट सेट ऑफ वैल्यूज। ये x की वैल्यूज है, दीज आर y वैल्यूज। साइन ऑफ x अलग से कैलकुलेट किया है, साइन कॉस ऑफ x अलग से कैलकुलेट किया है। नाउ दिस विल बी साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, साइन ऑफ 60 डिग्रीज, साइन ऑफ 90 डिग्रीज एंड सो ऑन। सो कैल्सी का मोड डिग्रीज पर पुट अप करके ये कैलकुलेट करना, ठीक है। देन y इंटू साइन ऑफ x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो 2 मोर कॉलम्स। वैसे ये कॉलम आपने नहीं लिखा, ये दोनों भी कॉलम आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा, xi का कॉलम, yi का कॉलम, yi इंटू साइन ऑफ xi का कॉलम, या yi इंटू कॉस ऑफ x का कॉलम। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पहले ये दोनों कॉलम फाइंड आउट करके फिर प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। सो बस 2 कॉलम्स आपके बढ़ जाएंगे, नथिंग मोर दैन दैट। तो यहाँ पर भी yi इंटू साइन ऑफ xi का कॉलम कैलकुलेट किया है, और इस कॉलम की हमें सम चाहिए। कौन से कॉलम की सम चाहिए, एक तो समेशन ऑफ yi, दिस इज समेशन ऑफ y इंटू साइन ऑफ xi एंड समेशन ऑफ yi इंटू कॉस ऑफ xi। इन 3 कॉलम्स की सम हमें चाहिए इवेलुएट करने के लिए, और ये सम हम हमारे फॉर्मूलाज में रखेंगे। a0 हमें मिलता है 0, a1 हमें मिलता है 41.88, b1 हमें मिलता है 1504.5, ठीक है। एंड हेंस फोरियर सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 41.88 cos ऑफ x, क्योंकि a0/2 यहाँ पर वैल्यू जो है वो आएगी नहीं, वो 0 बन रही है। a1 हमने लिखा यहाँ पर, cos ऑफ x n इक्वल टू 1 के लिए ये भी लिखा, दिस इज b1 प्लस b1 इंटू साइन ऑफ x एंड सो ऑन। जबकि हमें फर्स्ट हार्मोनिक तक ही बोला है, तो हम आगे की टर्म्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। एंड f ऑफ x क्या दे के रखा है आपको, ये दे के रखा है y। सो y एंड x के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करने की बात चल रही है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, वो ये रिलेशन है, इंटू साइन ऑफ x एंड सो ऑन। तो ये है आपका y एंड x के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। और एक चीज़ जो शायद और एक कल मैं लेक्चर लेती हूँ, इट विल बी जस्ट अ रिविजन लेक्चर, एंड इस पर्टिकुलर पीपीटी में कुछ MCQs एडेड है, आप इसके साथ डील कर सकते हो। बट आपका जो पेपर पैटर्न है ना, वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के केस में आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, तो ये ट्रू एंड फॉल्स के केस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो आपको जस्टिफिकेशन के साथ लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, f of x is equal to 1 plus x, 1 minus x for the interval -1 less than x less than 0, 0 less than x less than 1 is an odd function, true or false। अगर आप लिख रहे हो false, तो आपको इसका जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों ऑड फंक्शन क्यों नहीं है। तो आपको प्रूव करना होगा कि ये इवन फंक्शन है,
तो इसे हम फॉल्स बता सकते हैं. सो इस टाइप का जस्टिफिकेशन आपको लिखना है. यहाँ पर शायद फॉर्मूला बेस्ड कुछ आंसर क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. सो केयरफुली डू दिस पर्टिकुलर स्टफ विथ यू. तो ये तीनों प्रॉब्लम्स इस पीपीटी के एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल नंबर 3 जो हाफ रेंज का है, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. एंड यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स देके रखे हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो. ये दोनों भी प्रॉब्लम्स देखो, दीज आर 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देख सकते हो. Right now na I'm compiling all answers and solutions of the problems which I gave you in the class. जो क्लास में आपने मेरे कुछ 6-7 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं जो मैंने क्लास में दे के रखे थे आपको. कुछ के आंसर्स मेरे पास है which I am writing and जिनके आंसर्स मेरे पास नहीं है I am solving. So I will need 3-4 more hours to complete it. एंड उसके बाद ये PDF कॉपी जो क्लासरूम में मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए थे उनके आंसर्स के साथ एंड कुछ के सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको भेज सकती हूँ. ठीक है. सो विद दिस वी कैन कंक्लूड अवर टुडेज सेशन फॉर हार्मोनिक एनालिसिस. इफ यू आर हैविंग फर्दर प्रॉब्लम्स प्लीज आस्क, एल्स प्रैक्टिसाइज दिस वेल. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, सो आई अपलोड दैट मीनवाइल. तो आपके पास फिर से ये रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा एंड यू कैन प्रिपेयर एट योर लेवल वेल. If you are having any doubts, you can ask anyone. You can message me also. MT चा sample paper आहे का? नाही. This is your first pattern. कारण यावर्षी NEP इम्प्लीमेंट इस साल NEP इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो आपका सिलेबस एंटायरली डिफरेंट है. तो MT का कोई भी सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है. हमने पैटर्न दिया है ना बेटा, सो पैटर्न के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो. मैंने टाइम टू टाइम ये भी बताया कि कोई भी क्वेश्चन, बीट आइगन वैल्यूज, बीट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बीट एनीथिंग, मैंने ये भी बताया कि अगर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए तो किस वे में पूछा जाएगा. अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन तो किस वे में पूछा जाएगा. ऑल दैट स्टफ आई डिस्कस्ड इन द क्लास. तो मुझे नहीं लगता कि सैम्पल पेपर की जरूरत है वंस आई एक्सप्लेन यू दिस पेपर पैटर्न. ठीक है. ऑलराइट. यस रोहित. मॅम ही क्वेश्चन पण येणार आहे एमीला? सॉरी, ही क्वेश्चन पण येणार आहेत का म्हटलं? कुठले क्वेश्चन? हे आज आपण केलेत ते. हो हो अर्थात, म्हणून तर मी घेतलं एवढ्या इम्पॉर्टंट लेवलवर. फॉर K3 बॅच तुम्ही म्हटलं 7 मार्कावर. सॉरी, तुम्ही म्हटलं 7 मार्कला यायला पाहिजे असे पण. हां हां राईट. 6 to 7 मार्क्सला पूर्ण क्वेश्चन विचारायला हवा आहे. बट इफ आय विल बी आस्किंग यू जस्ट टू फाइंड आउट A1, जस्ट टू फाइंड आउट B1, आई कैन आस्क यू फॉर लिटल लोअर मार्क्स ना. ओके ओके. गॉट इट? येस मॅम. Okay. Any other question? Anyone?